Students, today we'll discuss the topic that is valence electrons, valency and binary compound formation. So let us start with the topic valence electron. So what are valence electron? These are the electrons present in the valence shell, or we can say outer मोस्ट शेल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जो आपके आउटर मोस्ट शेल है या वैलेंस शेल है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑल दीज आर कलेक्टिवली सेड टू बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नाउ सी हाउ कैन वी कैलकुलेट, और यू कैन से कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इन द शॉर्ट बेटा हम इनको लिख सकते हैं V डॉट E. V स्टैंड्स फॉर वैलेंस एंड E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स. So we will calculate this into two categories. First हम इसको calculate करेंगे atoms which are neutral in nature. Second we will calculate in terms of ions, that is in both cations and anions. Just see out. So I'll start with the first one, calculation of valence electron in atoms. So for the atom I'll take the example of, एक थोड़ा easy example से start करते हैं. I'll take the example of argon atomic number 18. So first we have to write down the electronic configuration. This will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Now see the students, this one is the first shell, this one is the second, and this one is the third shell. So out of first, second and third, we know that this third shell, this is the valence shell, and this contains 6 plus 2, 8 electrons. So we are having 8 valence electrons. Clearly outermost shell में count कर रहे हैं कितने electrons हैं. Now the second example that we will study, will take zinc atomic number 30. The configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, in the last 4s2, 3d10. अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा. This part is of first shell, this part is of second shell, this part 3s2, 3p6 and 3d10 ये आपकी थर्ड शेल का पार्ट है, and 4s2 is of the fourth shell. So out of 1, 2, 3 and 4, fourth shell will be the outermost shell, and this fourth shell contain 2 electron. So we are having 2 valence electrons. Keep remember this thing now. So two examples are sufficient to calculate the valence electron. Simply आपने देखा कि outermost shell के electron calculate करने हैं, and all these are valence electron. Now we'll discuss the second, that is in case of you can say ions. और ions में again there are two categories, cations and anions. So first we will calculate in case of cations. I'll write second A और इसको हम लिखेंगे second B. तो we'll discuss in second A, that is cations. So cations के लिए I'll take the first easy example. Suppose आपको Na positive में calculate करना है. So Na positive की configuration लिखेंगे. The configuration is 1s2, 2s2, 2p6. Now see, this is the first shell and this is the second shell. Out of first and second, this is the outermost shell, and this contains 2 plus 6, that is 8 valence electrons. Okay, now see one more example. If I'll give you Cu positive atomic number 29. Remember this is exceptional configuration, तो इसको उसी तरीके से लिखना है. The configuration of Cu positive is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d10. बेटा मैंने 4s0 किस लिए लिखा है, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं, जब हम कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं देन इट बिकम्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. अब देखिए हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, और वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? आउटर मोस्ट शेल से. यहाँ पर जो आउटर मोस्ट शेल है वो फोर्थ शेल. तो जब हमने फोर्थ शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया देन दिस शेल बिकम्स एम्प्टी, और एम्प्टी शेल को कभी भी वैलेंस शेल कंसिडर नहीं करना है. ध्यान रखिए, अगर किसी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन
लॉस हो चुका है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, तो वो आउटर मोस्ट शेल नहीं रही। हाँ, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन बचा है देन इट विल बी कंसिडर्ड आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब इसमें देखिए फोर्थ शेल में पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल को कंसीडर में फोर्थ शेल नहीं आएगी, ध्यान रखना इस चीज को। और उसका भी एक बहुत ईजी वे है कि आपके पास जब ऐसी कंडीशन आए, आप एक मेथड और कर सकते हो। आपने आया 4s0, 4s0 का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप उसको वहां से हटा दीजिए। आप सिंपली यू कैन राइट 3s2 3p6 3d10। तो आपकी मर्जी है, आप आइदर 4s0 लिख के कट कर दीजिए या उसको पूरा ही वहां से हटा दीजिए, ऑल योर विश। ठीक है, नाउ अगेन सी फर्स्ट शेल, सेकेंड एंड दिस वन इज नाउ थर्ड शेल, इसको हटा देते हैं बीच में से। नाउ थर्ड शेल में 10 + 6 16 and 2 वी आर हैविंग 18 valence electrons. Okay, now see one more example. We will discuss Zn positive atomic number 30, the configuration. Directly configuration लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10. Now this is the first shell, this is second, or you can write 2, 3s2 3p6 third shell and 3d10 also third shell. This 4s1 fourth shell. Now see which is the outermost shell. This fourth shell is the outermost shell and it contain one valence electron. Clear to all of you? So these are the sufficient example of calculation of valence electron in cation. Now we'll shift to the next one, that is second B, in which we have to study the calculation of valence electron in negative ions, or we can say anions. Just see out. Second B, anions. All of you know anions are formed by the gain of electron. So just see the first example. I'll take Cl negative atomic number 17. Now it contains total 17 + 1 18 electrons. So write the configuration for 18 electrons. This will be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Now this this one is the first shell, this one second shell and this one third shell. So third shell is your outermost shell beta, and it contains 2 + 6 total 18 valence electrons. Okay, now see one more example discuss करते हैं. Suppose आपको O negative atomic number 8, it contains 8 + 1 9 electrons. So the electronic configuration is 1s2 2s2 2p5. Now beta this one is the first shell, this one is the second, and second is the outermost shell. It contains 5 + 2 7 valence electrons. So this we have calculated the valence electron in case of atoms as well as in case of ions. Now we will study the variation of valence electron in groups. That is the next topic. Variation of valence electron in groups. For this I will take group number first, that is also said to be the alkali metals. So I'll write the group number first. The group is just like you can say lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Okay, now electronic configuration of lithium is 1s2 2s1. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें बेटा आपकी दो शेल्स हैं, दिस वन फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड शेल। तो जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, ध्यान कीजिएगा, OEC स्टैंड फॉर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आएगी आपकी 2s1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब रिमेंबर जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल कराई थी, देन आई हैव टोल्ड यू कि जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप पहले एलिमेंट की फाइंड आउट कर ले तो सिर्फ आपको उसमें एक एक शेल ऐड करना है। सो द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम विल बी 3s1, potassium will be 4s1, rubidium will be 5s1, cesium will be 6s1
एंड फ्रेंशियम विल बी 7s1। ये इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बहुत सिंपल बेनिफिट है कि विदाउट एटॉमिक नंबर आप अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अब जैसे लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक आई? 2s1, तो मुझे सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक लिखनी है बेटा? 3s1 तक। पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन हमें कहाँ तक नोट करनी है? 4s1 तक। रुबीडियम की 5s1, सीजियम की 6s1 और फ्रेंशियम की 7s1। और ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मींस इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल। आपको सीधे ही किसकी कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है? वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो यहां पर डायरेक्टली आपको क्या मिल गई? वैलेंस शेल। तो एक बार मैं पूरी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के दिखाऊंगा, फिर शॉर्टकट में तो आंसर हमारा आ चुका है। आंसर एक बार मैं बाद में इकट्ठा टैली करूंगा, बस थोड़ा सा एक बार कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बिकॉज स्टूडेंट मैनी ऑफ यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ राइटिंग द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, बट एज फार एज द कमिंग चैप्टर्स आर कंसर्न्ड द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड। सो आई विल राइट दिस वन। सोडियम हमें कहां तक लिखना है? 3s1, सो आई विल राइट 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। सिमिलरली पोटेशियम जाएगा 4s1 तक, सो आई विल राइट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। रुबिडियम will go up to 5s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1। Cesium will go up to 6s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, then 5s2, 4d10, 5p6 and 6s1. Clear to all of you? Now the last one is francium, that will up to 7s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, then 6s2. After 6s2 you have to remember हमारी F की फिलिंग स्टार्ट होती है, so I will write 4f14, then I will write 5d10, then I will write 6p6 and in the last I will write 7s1. 7s1 यहाँ नीचे नोट कर लेते हैं, 7s1. क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? सो अब ये मैंने कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई, बट फिर से मैं कहूँगा आपको कि कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इसलिए बताई बिकॉज मैनी ऑफ यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ राइटिंग द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज वेरी एसेंशियल. सो यहाँ पर सब में देखिए बेटा, जो लास्ट में है वो आपका आउटर मोस्ट शेल. यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? सेकेंड. यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? थर्ड. यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल फोर्थ. यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल फिफ्थ. यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल सिक्स्थ. और यहाँ पे आपके आउटर मोस्ट शेल का नंबर क्या है? 7. क्लियर हुआ अच्छी तरह? तो आउटर मोस्ट शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन है सब में चेक कर लो, 1 1 1 1 1 एंड 1 मीन्स ऑल विल हैव द 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. In all the cases we are having valence electron 1, that is 1 VE, 1 VE, 1 VE, here also 1 VE and here also 1 VE. So ये तो मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कराया पूरी कॉन्फ़िगरेशन से. अब थोड़ा शॉर्टकट काम करते हैं. शॉर्टकट के लिए मैं पहले इसको बेटा कंप्लीट रब करूंगा. देखिए कैसे करना है. शॉर्टकट में 2 मेथड है. फर्स्ट तो आपने आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ किसको बताती है? आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन को. तो यहां पर देखिए बेटा, सभी में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है. 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, 5s में 1, 6s में 1, 7s में 1. तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वन मोर थिंग, लिथियम से पहले कौन सी नोबल गैस आती है? हीलियम. सोडियम से पहले नियॉन. कंप्लीट लिख सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन. सो द कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2s1, यहाँ पे 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1. यहाँ से भी क्लियरली है आपको कि जो आपके आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है?
1 इलेक्ट्रॉन। मीन इन ऑल द केसेस हमने हर तरह से एक्सप्लेन किया कि ड्यूरिंग द ग्रुप जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, सेम। क्लियर। बट अब आता है सबसे इजी वे टू कैलकुलेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो मैं आज आपको बता रहा हूं। बिल्कुल अगर आपको ग्रुप में कैलकुलेट करना है तो बेस्ट वे क्या है, आप हेल्प लीजिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सिंपल, आपने फर्स्ट एलिमेंट नोट किया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आई 1s2 2s1, तो ये आउटर मोस्ट शेल, इस आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2s1। क्लियर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा आपका आ गया 1। सो सोडियम में डायरेक्टली आप क्या लिखोगे बेटा, 3s1 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम में 4s1 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रुबिडियम 5s1 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सीजियम 6s1 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्रेंशियम 7s1 1 valence electron. So best way is just write outer electronic configuration. Now we came to the result. What is the result? कि ग्रुप में क्या होता है, just see out. Variation of valence electron in groups. In the group, the valence electron remains same. Clear? So this we have discussed the variation of valence electron in groups. Now we will discuss the variation of valence electron in periods. Variation of valence electron in periods. For this, I'll take second period. The elements of second period are lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. As far as their atomic number are concerned, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now their electronic configurations. Lithium 1s2 2s1, beryllium 1s2 2s2, boron 1s2 2s2 2p1, carbon 1s2 2s2 2p2, nitrogen 1s2 2s2 2p3, oxygen 1s2 2s2 2p4, fluorine 1s2 2s2 2p5 and neon is 1s2 2s2 2p6. Now वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले मैं सब में ना जो आउटर मोस्ट शेल है उसको सर्कल करता हूं। ठीक है, यहां पे आउटर मोस्ट शेल सेकंड है, यहां पर भी सेकंड है, सेकंड 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 एंड सेकंड। इन ऑल द केसेस जो आउटर मोस्ट शेल है वो आपकी सेकंड है। अब इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। लिथियम कंटेन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम कंटेन 2, बोरोन कंटेन 2 + 1 3, कार्बन कंटेन 4, नाइट्रोजन हैज 5, oxygen has 6, fluorine has 7 and neon has 8 valence electron. So just see the student, जब आप पीरियड में मूव करोगे तो आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दे आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to लास्ट में what we got 8. So what the result I got? The result is the valence electrons increases from left to right in periods from 1 to 8. Clear? So this we have discussed the variation of valence electron in periods. Now beta we will study the valence electrons in S and P ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपको लर्न करना है। एज फार एज चैप्टर 3 इज कंसर्न दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो मेथड तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का, चाहे आप डी ब्लॉक में जाओ चाहे आप एफ ब्लॉक में जाओ। बट यहाँ पर जो हम बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे बेटा, वो हम बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे आज एस और पी ब्लॉक के, बिकॉज दीज आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो हम स्टडी करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस एंड पी ब्लॉक। यहाँ पे फर्स्ट जो आपका ग्रुप आएगा दैट इज फर्स्ट ग्रुप, देन सेकेंड ग्रुप, 13th ग्रुप, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th, ये ग्रुप है आपके।
मैं पहले बता दूं आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है. फर्स्ट ग्रुप कंटेन ऑलवेज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ग्रुप कंटेन 2, 13th ग्रुप कंटेन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14th 4, 15th 5, 16th 6, 17th 7 एंड 18th ग्रुप कंटेन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एक एग्जांपल भी बता देता हूं. चलिए फर्स्ट ग्रुप से एग्जांपल लेते हैं हम लिथियम का. इफ आई राइट द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सेकेंड ग्रुप से आई टेक द एग्जांपल ऑफ बेरिलियम. कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 13 ग्रुप से आई टेक द एग्जांपल ऑफ बोरोन. कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p1 सी आउट 2 + 1 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 14 से आई टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन. कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 सी आउट 2 + 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 15 से आई टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन. 1s2 2s2 2p3 3 + 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 16 ग्रुप से बेटा आई टेक ऑक्सीजन. 1s2 2s2 2p4 जस्ट सी आउट 4 + 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 17 से आई टेक द एग्जांपल ऑफ फ्लोरीन. 1s2 2s2 2p5 इट कंटेन्स 5 + 2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और 18th ग्रुप में आप ध्यान रखिए हम हीलियम को इंक्लूड नहीं करेंगे. क्लियर, हम स्टार्ट करेंगे नियॉन से. इट हैज़ द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 सी आउट 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ना हीलियम को क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, पहले इसी चीज़ को मैं यहीं बता के फिनिश करूंगा. हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 इट कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन. सो मैंने जब आपको प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप ब्लॉक पीरियड कराया था एट द टाइम आई हैव टोल्ड यू कि हीलियम इज द एक्सेप्शन. तो हीलियम यहां पर भी एक्सेप्शन है कि जब हम ग्रुप का कोई भी डाटा निकालेंगे 18th ग्रुप का, बी रिमेंबर हीलियम को उस डाटा से अलग रखना है. कुछ भी कैलकुलेशन करो आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, वैलेंसी निकालो, व्हाट्सोएवर इट इज, इसको अवॉइड करना है. ठीक है, तो हीलियम इज द एक्सेप्शन मैंने नोट करा दिया यहां पे. अब देखिए अब आपको क्लियर हो गया कि ये इन ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्लियर, और ग्रुप में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, सेम. तो यानी क्या है कि जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है दे विल हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ग्रुप 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 13th ग्रुप 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 14th ग्रुप 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 15th 5, सिमिलरली 16th 6, सिमिलरली 17th 7 एंड 18th 8. नाउ अब हम क्या करेंगे, हम बगैर एटॉमिक नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का एक मेथड है. मेथड कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होनी चाहिए. तो फर्स्ट ग्रुप जो मैंने आपको लर्न कराया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. सो ऑल दीज दे कंटेन 1 valence electron without any electronic configuration, without any atomic number. You are in the condition or you are in the situation कि आप valence electron find out कर सकते हो. So all these lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, they contain 1 valence electron. Now group number 2, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. They contain 2 valence electron. Now group number 13, boron, aluminium, gallium, indium and thallium. They contain 3 valence electron. 14th group, carbon, silicon, germanium, tin and lead. They contain 4 valence electron. Group number 15, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. All these contain 5 valence electron. Group number 16th, oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. All these contain 6 valence electrons. Whereas in group 17th, fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine, all these contain 7 valence electron. And in the last group 18, neon, argon, krypton, xenon and radon, all these contain 8 valence इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कि अगर आपको ग्रुप लर्न है पूरा तो आप डायरेक्टली उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर पहुंच सकते हो. सेकेंडली जो नेक्स्ट टॉपिक मैं भी स्टार्ट करूंगा दैट इज द वैलेंसी. तो अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो इट मीन्स आपको वैलेंसी भी पता है. ठीक है, सो दिस यू हैव टू लर्न. वो तो आपको पहले मैंने करा रखा है द पीरियोडिक टेबल, बट एक बार फिर से रिवाइव हो गया. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कंप्लीट हुआ. नाउ विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वैलेंसी. Student, in the lower classes you have learnt
that valency is said to be the combining capacity of elements. So वहीं से स्टार्ट करते हैं हम. Valency, it is the combining capacity of an element. किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी. कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कि जब वो कंबाइन करेगा, ठीक है ना, कंबाइन करते वक्त व्हाट ही डज, आई विल राइट स्पेशली ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन. कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, जस्ट सी आउट. ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन एवरी और एलिमेंट हैज 3 डिफरेंट मोड. आइदर इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स और इट गेन्स इलेक्ट्रॉन और इट शेयर इलेक्ट्रॉन्स. सो जितने भी इलेक्ट्रॉन वो लूज, गेन या शेयर करेगा, दैट इज ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन, दैट इज सेड टू बी द कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी. बैकवर्ड डायरेक्शन में देखिए, whenever any element combined either loses, gain or share the electron, that number of electron is said to be the valency. Clear? So what will I write? Valency is the number of electrons lost, gained or shared, clear, during combination. 3 वर्ड्स. अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. आपकी जो वैलेंसी है, ठीक है ना, वैलेंसी में देखिए बेटा 3 चीजें आती हैं, लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड. सो 2 नहीं, मैं पर्टिकुलर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा. अभी वैलेंसी को मेन 2 टाइप थी. देखिए इसको, जो आपकी वैलेंसी है, अब ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, थोड़ा ध्यान से देखना, नेवर गेट कंफ्यूज्ड. द वैलेंसी इज ऑफ, ब्रॉड में स्टार्ट करते हैं पहले 2 टाइप्स. इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड सेकंड इज कोवैलेंसी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड. यहां पर हमें स्टडी करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस या गेन किए. और आप आई थिंक 10th क्लास में स्टडी करके आए हो कि लॉस और गेन किस टाइप के बॉन्ड में होता है, आयनिक बॉन्ड में. सो पर्टिकुलरली मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. क्लियर? ठीक है. अब ये फिर से आपकी 2 टाइप की, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड नेगेटिव. पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी आएगी जब देर इज अ, यू कैन से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव आएगी बेटा व्हेन देर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इट विल बी +1 +2 +3. +1 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 1, और यू कैन से इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. +2 मीन्स इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन. +3 मीन्स इट हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन. नेगेटिव में इफ आई से -1 -2 -3, so -1 means it has gained 1 electron, -2 means it has gained 2 electron, -3 means it has gained 3 electrons, 3 electron. So फिर से समझिए इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है. मैंने आपको कहा था वैलेंसी क्या है, 3 चीजें आती हैं इसमें, आइदर द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन गेन्ड और इलेक्ट्रॉन शेयर्ड. तो जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन है वो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंसी में आएगा. पॉजिटिव में आपने देखा प्लस साइन, नेगेटिव में आपने देखा माइनस साइन. अब कोवैलेंसी, अब बेटा एक चीज बच गई, शेयर्ड. सो कोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड ड्यूरिंग, अब देखिए लॉस या गेन होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, और शेयरिंग होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. कि कोवैलेंट बॉन्ड के टाइम पर, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर है. सपोज इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, तो आपकी जो कोवैलेंसी की वैल्यू होगी बेटा वो 1. 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, देन कोवैलेंसी 2. 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, कोवैलेंसी 3.
4 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, कोवेलेंसी 4। और कोवेलेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती, इट इज अ सिंपल मैथमेटिकल फिगर, बट याद रखिए जो आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन से ही उनके टाइप का पता चलता है। वैलेंसी इज क्या था, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट गेन। तो लॉस्ट और गेन किस में आएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी में आएगा, और शेयर्ड किस में आएगा, कोवैलेंसी में। तो थोड़ा सा मैंने आपको वैलेंसी का डिटेल में समझा दिया। अब हम करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द वैलेंसी, जस्ट सी आउट नाउ कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी। कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी। जब हम वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये ध्यान रखिएगा कि आप वैलेंसी ओवरऑल कैलकुलेट कर रहे हो, क्लियर। उसमें बाइफर्केशन की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी या कोवैलेंसी, जैसा आएगा बिल्कुल सामने आपके सामने रिजल्ट आएगा। सो वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अप टू 4। अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वहां तक वैलेंसी भी आपकी सेम रहेगी, एंड it is equal to valence electrons -8 if valence electrons are more than 4। अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से ज्यादा है तो आपको इसको यूज करना है। सो जस्ट चेक करते हैं पहले। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई विल राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और बेटा राइट साइड में हम लिखते हैं वैलेंसी। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है देन अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट वैलेंसी इज 1। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इज 2। और बेटा 1 2 का मतलब ये पॉजिटिव है, ध्यान रखिए। 3 में इट विल बी +3, 4 में इट विल बी यू कैन से +4। अब यहां पर आइए 5 में क्या होगा, 5 - 8, सो दिस विल बी -3। सिमिलरली 6 में 6 - 8 -2। सिमिलरली 7 में 7 - 8 -1। और बेटा 8 में 8 - 8 इक्वल टू 0। तो ये वैलेंसी बिल्कुल सिंपल है, +1 +2 +3 +4 -3 -2 -1 0। तो पॉजिटिव किसके लिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और ये जो बीच में +4 है यहां पर आपकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट भी आएगा, बट वो आएगा लेटर ऑन, अभी नहीं आएगा वो। अभी आप वैलेंसी +4 ही लेकर चलेंगे। सो अब इस चीज को मैं ग्रुप नंबर से भी रिलेट करता हूं, जस्ट सी आउट। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13th 14th 15th 16th 17th एंड 18th। सी आउट। ग्रुप नंबर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 वैलेंसी +1, डायरेक्टली लर्निंग, ठीक है ना, ये मेन पार्ट है हमारा। ग्रुप नंबर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी +2। ग्रुप नंबर 13th वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंसी +3। ग्रुप 14th वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंसी +4। ग्रुप 15th वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 वैलेंसी -3। ग्रुप 16th वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 वैलेंसी -2। ग्रुप 17th वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंसी -1। ग्रुप 18th वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 वैलेंसी 0 मीन्स नॉट कंबाइन विद अदर, विद एनी अदर, ये किसी और से कंबाइन नहीं होगा। और 18th ग्रुप आपको पता है बेटा किसके लिए होता है, इट इज फॉर द नोबल गैसेस, ये कभी किसी से कंबाइन नहीं करती बिकॉज इनकी वैलेंसी क्या है, 0, विद 1 एक्सेप्शन मैं यहां पे लिखूंगा, एक्सेप्शन ऑफ नोबल गैस विच कंबाइंस इज जिनॉन। सिर्फ जिनॉन अकेली ऐसी नोबल गैस है जो कॉम्बिनेशन शो करती है। उसका जो रीजन है वो हम आने वाले इस चैप्टर में कुछ लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जिनॉन जो है वो यहां पर क्या है, कंपाउंड फॉर्मेशन करती है ओनली जस्ट लाइक XCF2 आ गया बेटा, XCF4 आ गया, या XCO3, इस टाइप के, क्लियर। तो थोड़ा सा हमने स्टडी किया, अभी ग्रुप से आए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, काफ़ी डिटेल हमारे पास नॉलेज आ चुकी है, ठीक है। तो वैलेंसी की कैलकुलेशन आपको क्लियर है। नाउ विल स्टडी वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन
groups. For this I will take the first group. ग्रुप तो आप कोई भी ले सकते हो, बट फर्स्ट ग्रुप स्टार्टिंग ग्रुप है, देयरफॉर आई हैव टेकन दिस. वेरिएशन ऑफ valency in groups. Beta, for this I have taken group number 1, that is alkali metals. The elements are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Clear? So their electronic configuration. Clear? लिथियम से पहले कौन सी नोबल गैस आती है? लिथियम से पहले नोबल गैस आएगी आपकी हीलियम, तो कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2s1. सो बाकी की सेम एज इट इज. यहाँ नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, दिस इज द वे. और यहाँ पर बेटा 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1. क्लियर? सो यहाँ पर जो आपकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. Now the valence electron 1, 1, 1, 1, 1 and 1. So the valency is +1, +1, +1, +1, +1 and +1. So यहाँ पर आपने देखा बेटा ड्यूरिंग द ग्रुप जो आपकी वैलेंसी है वो सेम रहती है बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम. सो व्हाट विल आई राइट? द वैलेंसी remains same because valence electrons remains same in groups. Clear? So this we have done the variation of valency in groups. Now we will study the variation of valency in periods. For this I will take second period. Variation of valency in periods. The second period I will take. The elements are lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and you can say neon. ठीक है बेटा. एज फार एज देयर एटॉमिक नंबर इज कंसर्न्ड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. नाउ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. लिथियम 1s2, 2s1, बेरिलियम 1s2, 2s2, बोरोन 1s2, 2s2, 2p1, कार्बन 1s2, 2s2, 2p2, नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3, oxygen 1s2, 2s2, 2p4, fluorine is 1s2, 2s2, 2p5 and neon is 1s2, 2s2, 2p6. Now their valence electron. मैं इनकी वैलेंस शेल को सर्कल कर रहा हूँ. सब में जो वैलेंस शेल है वो सेकंड है. सेकंड इज देयर आउटर मोस्ट शेल. नाउ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now the valencies. +1, 2 के लिए बेटा +2, 3 के लिए +3, 4 के लिए +4, 5 के लिए -3, 6 -2, 7 -1 और 8 के लिए क्या हो गया 0. सो यहाँ से क्लियरली विजिबल है आपकी वैलेंसी +1 से +4 तक इंक्रीज करेगी, देन इट विल डिक्रीज टू 0. तो रिजल्ट आई विल राइट हेयर. Valencies increases from +1 to +4 and then decreases to 0. Clear? So this we have completed student the variation of valency in periods. Now we'll shift to the last article जो आज का है, that is a binary compound formation. Binary compound formation. Student, the binary compounds, these are the compounds formed between two elements.
जब आप सिर्फ दो एलिमेंट्स के बीच में कंपाउंड बनाते हो, दीज आर सेड टू बी द बाइनरी एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज फॉर्म बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. सिमिलरली NaCl, this is formed between sodium and chlorine. Okay, now just see how to the procedure or you can say process. तो प्रोसेस के लिए मैं थोड़ा डाटा यहाँ पे नोट करूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो ये मान के चलिए आज के लेक्चर का मेन कंक्लूजन है, और इट मस्ट बी लर्न टू यू. ओके, हम जो बाइनरी कंपाउंड अभी बनाएंगे, वी विल डील इन S एंड P ब्लॉक. ये ध्यान कीजिए, ठीक है ना, किस में बाइनरी कंपाउंड बनाना है, सॉरी, S और P ब्लॉक. सो ग्रुप नंबर मैं यहां नोट कर रहा हूं, ग्रुप नंबर फर्स्ट, देन सेकेंड, 13th, 14th, 15th, 16th एंड 17th. क्लियर. तो पहले हम लिखेंगे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब तक तो आपको लर्न भी हो गया होगा दैट ग्रुप 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकेंड हैज 2, 13th हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14th हैज 4, 15th हैज 5, 16th हैज 6, 17th हैज 7. मैंने 18th ग्रुप को यूज नहीं किया क्योंकि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है, वो कंपाउंड नहीं बनाता, सिर्फ एक एलिमेंट बनाता है, जिनॉन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए नाउ वैलेंसी. सो फर्स्ट ग्रुप में +1, सेकेंड में बेटा +2, 13th +3, 14th +4, 15th -3, 16th -2 and 17th -1. Now their elements. Group 1 lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Group 2 beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. 13th boron, aluminium, gallium, indium and thallium. 14th carbon, silicon, germanium, tin and lead. 15th nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. 16th oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Clear to all of you. Now 17th फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन. सो यहां पर हम वैलेंसीज और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही अपने बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे. और उसमें एक मैं आपको लिख देता हूं, आपको करना क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसीज. आपको वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इफ दे आर नॉट सिमिलर. अगर वो एक जैसी नहीं है, एक जैसी का मतलब बेटा मैथमेटिकल फिगर अलग है, मींस 1 + 2 है, 1 -3 है, 1 + 1 है, 1 -2 है, दीज आर नॉट सिमिलर. सो जस्ट सी द एग्जाम्पल नाउ. तो पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसीज इफ दे आर नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर में. तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो इसमें लेके चलते हैं, यहां से लेते हैं लिथियम और यहां से लेते हैं हम, वी कैन टेक नाइट्रोजन. सो लिथियम की वैलेंसी क्या है बेटा +1, नाइट्रोजन की वैलेंसी -2. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट Li3n. वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. और ये आपको पता होगा पॉजिटिव वैलेंसी वाला पार्ट पहले आता है, नेगेटिव वैलेंसी वाला पार्ट बाद में आता है. दिस यू हैव टू रिमेंबर. नाउ फर्स्ट एग्जांपल. नाउ सेकंड एग्जांपल. I'll take मैग्नीशियम और यहां से I'll take यू कैन सी नाइट्रोजन. चलिए, सो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो +2 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट Mg3n2. ओके. नाउ थर्ड एग्जांपल, बिटवीन एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन. So beta valency of aluminium is +3, oxygen is -2. Cross multiply, you will get Al2O3. Clear. So now we'll discuss the second process. Second में आपको क्या करना है, cut out the valencies if they are similar.
अगर आपकी वैलेंसी सिमिलर है बेटा, उन्हें कट आउट करना है आपको। कट आउट का मतलब कट करके जो भी रिजल्ट आएगा, जस्ट सी आउट। सपोज हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन। सो कैल्शियम की जो वैलेंसी है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। कट आउट, व्हाट विल यू गेट? +1 एंड -1। तो 1 1 सिंपल, द फॉर्मूला विल बिकम नाउ CaO। सेकेंड एग्जाम्पल, आई विल टेक एल्यूमिनियम वर्सेस फॉस्फोरस। चलिए, एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है +3, फॉस्फोरस की वैलेंसी -3। कट आउट, यू विल गेट +1 -1, 1 1 आ गया। द फॉर्मूला इज AlP। क्लियर? नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इन दिस कैटेगरी, आई विल टेक सोडियम और यहां से मैं लेता हूं बेटा आई विल टेक क्लोरीन। सो सोडियम +1, क्लोरीन -1, ऑलरेडी लोवेस्ट स्टेट में है, सो द कंपाउंड इज NaCl। So this is the way by which we can find out that how the compound are formed on the basis of valencies। So आज के लेक्चर में हमने बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और बाइनरी कंपाउंड किया, और ये हमने मेन किया कि ग्रुप नंबर 1 हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन +1 वैलेंसी, दीज आर द एलिमेंट्स। ग्रुप 2 हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन +2 वैलेंसी, दीज आर द एलिमेंट्स। Group 13 has 3 valence electron +3 valency, these are the elements. Group 14 has 4 valence electron +4 valency, these are the elements. Group 15 has 5 valence electron -3 valency, these are the elements. Group 16 has 6 valence electron -2 valency, these are the elements. Whereas 17th group has 7 valence electron -1 valency, and these are the elements. So student, this is all about the topic, that is you can say valence electron, valency and binary compound formation. That's all.